Hey guys, welcome back with another video. In today's video, we are going to discuss about how to become a DevOps engineer in 2025. So if you are new on this channel, please subscribe and hit the bell icon, and I will share the entire roadmap that you should have to follow if you are really interested to become a successful DevOps engineer. So मैं स्टार्टिंग से ही डायरेक्टली आई विल डिस्कस अबाउट हाउ आई स्टार्टेड माई करियर ऑल्सो. मैंने डायरेक्टली डेवॉप्स इंजीनियर की जॉब नहीं ली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लिनक्स. आई ऑल्सो हैड अ वन एक्सपीरियंस इन नेटवर्क इंजीनियर. उसके बाद मैंने डेवॉप्स इंजीनियर में जॉब की. ठीक है. इफ़ यू आर ऑल्सो अ फ्रेशर और यू आर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर, दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर you because I'm going to share that step by step you have to follow. I'm not going to talk about the tools directly, but instead of that I will share the important things that you should have to learn it. And first of all, before starting this video, I would just explain that thing. DevOps is not about tools. ठीक है. DevOps more than his tool, we are learning DevOps tools to achieving reliability, how to create an environment that is reliable, scalable, and how to deliver the software in effective way and fast way. Okay, that is the DevOps meaning. And DevOps introduced because of that is a problem where developer is writing a code and it is getting a lot of time to deploy in the production. So to solve that problem, DevOps got introduced, and we are using a lot of tools to achieve that kind of environment. Okay, तो आप अगर सोच रहे हो DevOps सिर्फ लर्निंग टूल्स है, इसका मतलब 100% रॉन्ग है. ठीक है. You can also do automation by using programming languages instead of using the tools, but there is a strategy that you should have to use tools. But उससे पहले आपको टेक्निकली सीखना पड़ेगा कि कैसे और चीज़ें सीखनी है, so that you will have a good strong knowledge and good strong base on that. Second thing, there is misconceptions that you will get a DevOps job as a fresher, which is very hard to get that. If you are getting it is very good that you have a capability to get the job, but as a fresher it is very difficult to get a DevOps job. So instead of that, if you can go through that Linux admin or you can go to the network engineer, then you can switch your career. Or maybe you are a developer, right? If you are getting a developer job, you can get that. Later on you can switch to the DevOps engineer. Similar way also I have learned from my own experience. I'm telling you, when मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड एज लर्निंग फ्रॉम कॉलेज नथिंग. ओके, मैंने कॉलेज में कुछ भी नहीं सीखा, जस्ट फंडामेंटल सीखे थे, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी लिनक्स में हेल्प होगी, क्योंकि मुझे लिनक्स में बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से. तो मैंने फंडामेंटल कॉलेज में सीखे एज ए लिनक्स. ओके, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था. आई जस्ट गॉट माई फर्स्ट जॉब एज फ्रॉम स्टार्टअप कंपनी. दैट वॉज अ स्टार्टअप कंपनी, और उस कंपनी में मैंने बहुत चीज़ें सीखी है. तो अगर आपको कोई स्टार्टअप कंपनी मिल रही है जॉब करने के लिए, तो गो फॉर दैट, यू विल लर्न अ लॉट. ओके. And I got a system administrator job where I learned how to create a virtual machines, how to deploy it. ठीक है. तो basically I was creating an infrastructure for running the applications. That was a monolithic application, but that was a different story. Later on I switched my job because आपको ये पता कि फ्रेश स्टार्टअप कंपनी में कितनी देर आप रुक सकते हो. तो मैंने 2 साल जॉब की है स्टार्टअप कंपनी में. उसके बाद आई स्विच टू अ नेटवर्क इंजीनियर रोल, एंड देयर आई लर्न अ लॉट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट. मुझे पता ही नहीं था मुझे करियर में करना क्या है, तो मुझे लगा था कि मैं नेटवर्क इंजीनियर की जॉब कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे लिनक्स की नॉलेज है, तो मैं नेटवर्किंग की स्किल सीख के नेटवर्क की जॉब कर लेता हूँ. बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग नेटवर्किंग एंड आई गॉट अ जॉब ऑल्सो, लेटर ऑन आई जॉइन वन वेबिनार. There was a one speaker and he introduced explained the DevOps, what is the meaning of DevOps and use of DevOps. वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना, यार दिस इज़ अ राइट पाथ टू गेट द जॉब, एंड दिस इज़ अ राइट पाथ टू गेट माई करियर. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को भाई डेवॉप्स में ही जाना है. मैंने कुछ भी नहीं सोचा था. आई स्टार्ट लर्निंग डेवॉप्स. मैंने अप्लाई नहीं किया था, ना मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी. मैंने डेवॉप्स की स्किल्स सीखे, खुद ही सीखे थे. डॉक्यूमेंटेशन पढ़े मैंने, ट्यूटोरियल्स भी पढ़े, देखे यूट्यूब पे, एंड आई स्टार्टेड learning it, and then I got my first job as a system site reliability engineer. It is a part of DevOps, but you have to go step by step. If you're thinking that you will get a DevOps role directly, it is not really. Okay, so what I have learned from my mistakes,
I just want to share it before starting jumping directly on a roadmap, so that you, if you are also doing the same mistake, then please avoid this kind of mistake. Okay, अगर आप tutorials देख रहे हो starting में, that is fine, you can learn some basic concept with the tutorials, but do not always go with the tutorials for learning perspective, क्योंकि YouTube पे एक टॉपिक के 1000 वीडियोस है सेम काइंड ऑफ थिंग्स, और आप उसी के अंदर स्टक होते रहोगे। आप सोचोगे यार ये बंदा सही पढ़ा रहा है, भाई उसने कुछ और पढ़ा दिया, ठीक है। समबडी इज सेइंग दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट, समबडी इज सेइंग दैट इट इज़ डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। कोई कह रहा है कि आपको बेसिकली आपको जेनकिंस सीखना चाहिए, कोई कह रहा है कि जेनकिंस आउटडेटेड हो गया। तो मतलब आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा अगर आप यूट्यूब की ट्यूटोरियल्स देख रहे हो। rather than you can learn some basic concept for just getting a tutorials, okay, then later on you have to read the documentation for each। आप कोई भी टूल सीख रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। लर्न द डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन लर्निंग वॉचिंग द वीडियोज़, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव लर्न, एंड इवन टिल नाउ I am watching videos only specific people. I know that I have just 2 or 3 people that I know that I can trust the content, and these people are providing a right content. So first make sure that you are watching to the right people, and then later on you also read the documentation, ठीक है। सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है थोड़ी सर्टिफिकेशन के लिए, विच आई डोंट वांट टू शेयर अ लॉट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सर्टिफिकेशन कर सकते हो, यू विल गेट सम मोटिवेशन दैट आई एम सर्टिफाइड। बट अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, और मतलब आपकी डेवऑप्स में रोल नहीं मिला अभी आपको, तो आप सर्टिफिकेशन कर लो। बट अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑप्शनल थिंग्स। नेक्स्ट थिंग, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो ना और आप इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो देर इज़ नो लर्निंग एंड देर इज़ नो स्कोप टू गेट इन टू दैट करियर पाथ। तो अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट एंड देन शो टू द पब्लिक, ओके। यूज रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। सो प्रोजेक्ट्स इज मोर देन इंपॉर्टेंट देन सर्टिफिकेशन, दैट यू नीड टू लर्न इट, ओके। कुछ भी सीख रहे हो, create a project, simple project, share on LinkedIn, or also share create a GitHub tutorials, GitHub repository, and share your resources so that people know that you know how to deal with technology, okay, these are the basic things. Let's learn about what should we need to follow. If I have to start my DevOps journey, how I would approach to the right thing. The first thing, I will not go directly again. I will learn with the ChatGPT, or I will learn about some AI and other tools like you can use Copilot or any AI tools that help you to learn things easily, okay. So first of all, मैं हमेशा जाऊँगा लिनक्स से ही स्टार्ट करो। विंडोज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कंपनीज आर यूजिंग लिनक्स। सो स्टार्ट विद द लिनक्स, लर्न, चूज़ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ कर सकते हो, मैटर नहीं करता। हाँ, देर आर पैकेजेस, डिफरेंट पैकेजेस मैनेजमेंट, ओके। यू कैन यूज़ उबुंटू फॉर नाउ। ये सीखो कि कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स को। योर लोकल अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करो डायरेक्टली, इंस्टॉल अ वर्चुअलाइजेशन, और मे बी यू कैन यूज़ हाइपरवाइजर, ओके, टू इंस्टॉल लिनक्स। उसके बाद डायरेक्टली लर्न अबाउट द लिनक्स कमांड। बेसिक से स्टार्ट करो, ज़्यादा एडवांस पे मत जाओ। स्टार्टिंग विद द बेसिक कमांड लाइक व्हाट इज़, आई ऑल्सो टाइप सम कमांड्स हियर, बट यू कैन लर्न अबाउट मोर कमांड्स विद द AI टूल्स। यू कैन जस्ट आस्क AI like I just install my Linux environment, right? I just give me some commands to run it and tell me what is a use case of this command. Learn with the ChatGPT, okay. This is how all of people are learning, okay. When you learn with the basic commands, learn with how to handle the files, like how to mount and unmount the files, NFS, Samba services, disk quota, how to assign the disk spaces to specific user। ये चीज़ें सीखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट पे आओ, ठीक है। व्हाट इज़ सिस्टम डी के बाद इनिट के बारे में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस। लेट्स से योर प्रोसेस इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ CPU और RAM, राइट। हाउ यू विल control that process to not use that kind of processes, right? So you can use a nice command, right? And then learn about the cron jobs, which is very important, okay.
डिस्क पार्टीशन के बारे में आ जाते हैं. डिस्क पार्टीशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक हाउ टू create a disk partition, how to even create a different spaces for we have, right? So learn about LVM and rates. These two concepts if you learn, that is enough for that. Okay, then also अंडरस्टैंड अबाउट द यूज़र मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. जब आप कोई भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद द डिफरेंट यूज़र्स, किसके पास कौन सी परमिशंस है और कैसे किसी की परमिशन को हटाना है. ठीक है, कैसे किसी को कनेक्शन मतलब किसी यूज़र का एक्सेस हटाना है. और मतलब ये बेसिकली मैनेजमेंट होता है. उसके बाद सूडो कॉन्फ़िगरेशन भी सीखो कि बेसिकली हाउ टू यूज़ पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन फॉर द सूडोस. ओके, विद द प्राइवेट की एंड पब्लिक की, वो चीज़ें सीखो. उसके बाद पैकेज मैनेजमेंट. अगर आप उबुंटू यूज़ कर रहे हो तो यू विल लर्न अबाउट ऐप्ट पैकेज मैनेजमेंट. ठीक है, अगर आप दूसरा कोई लाइक लेट्स से रेड हैट, तो देन यू विल लर्न अबाउट यम. सो कोई भी पैकेज मैनेजमेंट को पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर. उसके बाद ये भी सीखो कि अगर कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, यू हैव अ सोर्स कोड, हाउ टू बेसिकली कंपाइल इट फ्रॉम द सोर्स कोड एंड बिल्ड दैट एप्लीकेशन. ये चीज़ सीखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, सिस्टम एडमिन का पर्पस ही ये होता है कि उसको मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन. ठीक है, उसके पास OS लेवल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल रियली डोंट नो एंड डोंट केयर अबाउट दैट. बट अगर आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है, देन डोंट लर्न अबाउट DevOps ऑल्सो. ओके, DevOps इज़ नॉट अबाउट जस्ट टूल्स बट ऑल्सो लर्न अबाउट द सिक्योरिटी. तो उसमें ये देख सकते हो कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज इनबाउंड एंड आउटबाउंड कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स टूल्स लाइक IP tables एंड firewall-D. फिर उसके बाद आप सीख सकते हो SSH कॉन्फ़िगरेशन, ऑडिटिंग एंड लॉगिंग. दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लर्न इट. ओके, जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का सीख लोगे, उसके बाद लर्न अबाउट नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट अभी मैंने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट राइट डाउन कर दिए यहाँ पे. आप और भी पढ़ सकते हो, बट जस्ट लर्न अबाउट सम बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट. लेट्स से हाउ इंटरनेट वर्क्स, राइट, and learn about this is very important, OSI model and TCP/IP model, why we are using TCP/IP model now instead of OSI model. learn about the transport layer and network layer. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें that once you learn about these two model, you will learn about everything, how that network, how internet works. Okay, then learn about different networks, private network and public network, and also learn about the NAT bridges, NAT and different kind of bridges, right. फिर उसके बाद गेटवे के बारे में अंडरस्टैंड करो कि हाउ योर कनेक्शन इज़ गेटिंग आउट फ्रॉम योर home network, right. What is a gateway, routers, routing tables, right, that you need to learn it. And this is very important concept, you need to learn about subnetting. सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक. इसको ढंग से पढ़ना, और VLANs के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो टॉपिक आपको ढंग से पढ़ने हैं. ठीक है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में भी. तो अगर आपको सबनेटिंग नहीं पता, तो देर इज़ वन चैनल, आई फॉरगेट, बट आई विल शेयर द लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन फॉर यू कैन लर्न वेरी ईजली वे दैट व्हाट इज़ सबनेटिंग. VLANs के बारे में पढ़ो. उसके बाद पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में पढ़ो, हाउ टू फॉरवर्ड योर पोर्ट फ्रॉम टू एक्सेस द एप्लीकेशन. ठीक है, ये भी देखो, हाउ टू एक्सपोज द पोर्ट. तो उसके बाद लर्न सम यूटिलिटी टूल्स टू अचीव ऑल द थिंग्स. ओके, हाउ टू मैनेज इट. Later on you can learn about advanced concept like web services, Apache and Nginx. Nginx बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने सुना होगा कि Nginx वेब HA proxy load balancer, right. तो Nginx is a web server, also a load balancer, also a proxy server. okay, तो ये आप सीखो. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डीप में ना जाओ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग सीखो कि Nginx काम कैसे करता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद डेटाबेसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो. व्हाट इज़ डेटाबेसेस. ओके,
how to deal with the different databases, what is relation database, non-relation database. MySQL is and or NoSQL. MySQL is a relation database or NoSQL is a non-relation databases. तो बेसिकली समझो कि दोनों में डिफरेंस किया क्यों नॉन रिलेशन डेटाबेस इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद PostgreSQL पढ़ सकते हो, रेडिस पढ़ सकते हो फॉर कैशे सर्वर, ठीक है। बैकअप कैसे करते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं डेटाबेस के बारे में ये पढ़ सकते हो। उसके बाद पढ़ो DNS के बारे में। DNS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से यू हैव IP, यू लर्न अबाउट द IP एंड मैक एड्रेसेस। उसके बाद DNS के बारे में पढ़ो कि DNS का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ये भी सीखो कि हाउ टू बाइंड एंड अनबाउंड द प्रोसेस, कॉन्फ़िगर करो, ठीक है, DNS। एंड ये सिक्योरिटी की ये चीज़ जब पढ़ोगे ना आप, तो यू विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दैट लोड बैलेंसर सेंड द ट्रैफिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ लोगे ईजिली देन यू विल एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज़ ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद ईमेल सर्विसेज के बारे में पढ़ो। देर आर 2 सर्विस आई लिस्ट डाउन हेयर। यू मे सर्च ऑन डिफरेंट, I mean you just go to internet and search about different email services. I'm not sure about email services, but I just know about these 2 services that I used to follow it, but you can learn it, okay. So once you know about Linux and networking concept, then next step you need to learn about programming and scripting languages. Now there is another misconception कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है एज अ DevOps इंजीनियर। पहली चीज़ मैं बताऊंगा, 2 रीज़न है आपको क्यों सीखनी चाहिए और क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रीज़न इज़ you as a DevOps engineer, you have to build the application and deploy in infrastructure, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एप्लीकेशन डिज़ाइन कैसे हुई है और हाउ टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, तो हाउ यू विल एबल टू इंस्टॉल इट। लेट्स से पाइथन की एप्लीकेशन है, तो अगर पाइथन की एप्लीकेशन है, एज अ DevOps इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू इंस्टॉल द रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रिक्वायरमेंट्स और TXT, ठीक है। उसको कंटेनराइज कैसे करते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि पाइथन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट और TXT क्या होती है, जावा में pom.xml होता है, राइट, और Node.js के एप्लीकेशन में पैकेजेस होते हैं। तो बेसिकली यू शुड हैव टू नो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू राइट अ Node.js एप्लीकेशन, ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए, बट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। अब लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपको बेसिक सीखनी है तो इतना एडवांस टॉपिक क्यों डालते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में कितने क्यों कंफ्यूज करते हैं लोगों को। सेकंड रीज़न है, पहली चीज़ कि जब डेवलपर एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है ना, उसके बाद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बिल्ड दैट एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके बाद डिप्लॉय करने के लिए। अब होता क्या है, जब आप डिप्लॉय करते हो ना एप्लीकेशन, लेट्स से यू हैव टू डिप्लॉय, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एग्जांपल दैट देयर इज़ अ 10 सर्वर रनिंग ऑन योर क्लस्टर, ठीक है। 10 एप्लीकेशन चल रही है। आपको टास्क मिला है कि आपको लिस्ट क्रिएट अ लिस्ट, आपको बेसिकली हेल्थ चेक करनी है और आपको सबकी IPs निकालनी है और मैक एड्रेस निकालने हैं। तो अगर आप ये टास्क को मैनुअली 1 by 1 करोगे, विल इट रियली अ गुड वे? नहीं ना। तो आपको बेसिकली, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, अगर आपको पाइथन आती है, आप सिंपल छोटी सी स्क्रिप्ट लिखोगे और आप यू कैन रन ऑन ईच सर्वर, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो यूज सम ऑटोमेशन टूल टू रन ऑटोमेटिकली ऑन ऑल द सर्वर्स, और दैट विल क्रिएट अ रिपोर्ट एंड विल गिव यू द दैट रिजल्ट, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ हेल्पफुल टू अचीव ऑल द ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेटिकली कॉल्स, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ, बट यू हैव टू डेफिनेटली लर्न इट, हाउ टू डीबग द एप्लीकेशन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब आप एप्लीकेशन टेस्ट होती है, उसके बाद डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके बाद सम इशू आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे एप्लीकेशन डिज़ाइन है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एप्लीकेशन चलती कैसे है बैकएंड में, तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर विच पर्पसेस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर DevOps engineer, choose a right programming language. So I have listed down 3 language, okay. Go language you can learn later on because it is more likely you will confused if you learn as a beginner. But once you learn about shell scripting, let's say you have learned about Linux, right, here you learn about Linux commands and this thing, then you will able to easily learn about the shell scripting also,
शेल स्क्रिप्टिंग कुछ भी नहीं है. शेल स्क्रिप्टिंग क्या है? लेट मी it is a kind of script, it is a kind of file where you will write all your task or all the commands of shell that you are learning from shell script, Linux shell commands. And when you execute that command, lines of code will execute one by one, and this is happen with similar way in each programming languages. Okay, it's a runtime programming language. So but shell scripting is not a programming language, it is a scripting language. पाइथन भी सेम सिमिलर वे में यूज़ होती है, इस इट्स ठीक है. बट प्रोग्रामिंग पाइथन में यू हैव एडवांटेज दैट प्रोग्रामिंग पाइथन कैन बी यूज इन मल्टीपल वे. ओके, इट कैन बी यूज इन बैक एंड सर्विसेज, इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेब सर्विसेज, it can also use for ML and algorithm, because it has a feature that you can use libraries and modules. Okay, shell scripting में नहीं कर सकते. तो शेल स्क्रिप्टिंग किस यूज़ कब होती है? जब लेट्स से यू हैव बिल्ट समथिंग, यू वांट टू डू सम ऑटोमेशन, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है, आप सिंपली शेल स्क्रिप्ट भी सिंपल छोटी स्क्रिप्ट लिख सकते हो शेल स्क्रिप्टिंग की, जो ऑटोमेट कर रहे टास्क को. ठीक है, और आप उस जो स्क्रिप्ट है उसको आप बेसिकली एक क्रॉन जॉब की हेल्प से शेड्यूल कर सकते हो, तो वो भी एक काइंड ऑफ ऑटोमेशन है. ठीक है, तो बेसिकली इट डिपेंड्स एंड यूज़ केसेस. अब पंगा ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हो ना, तो देर आर डिफरेंट सिंटेक्स. शेल स्क्रिप्टिंग का डिफरेंट सिंटेक्स है, पाइथन का डिफरेंट सिंटेक्स है, बट द लॉजिक इज सेम. ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ वेरिएबल्स, व्हाट इज़ अ वेरिएबल्स, सो अगर आपको पता होगा हाउ व्हाट इज़ वेरिएबल्स, देन यू कैन क्रिएट अ शेल स्क्रिप्टिंग वेरिएबल्स ऑल्सो, पाइथन वेरिएबल्स ऑल्सो. The difference is only thing is you need to learn the basic concepts, and then you have to just understand the syntax of each language. ठीक है, ये बेसिक है, समझो कैसे बेसिक फंडामेंटल यूज़ होते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ वेरिएबल्स, एरे एंड टपल्स एंड डिफरेंट थिंग्स, एंड देन यूज़ इट इन योर वर्कलोड. ओके, डू सम टास्क ऑटोमेशन. ठीक है, कोई स्क्रिप्ट लिखो जो टास्क ऑटोमेट करे, चेक करे CPU यूजेज एंड मेमोरी को चेक करे. ये कर सकते हो. फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, विद पाइथन यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइब्रेरी कॉल्ड Boto3 लाइब्रेरीज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है. अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, देन यू विल एबल टू लाइक कॉल द API and create resources with the help of Boto3. So Boto3 is nothing, is provided by the Amazon library. It's an AWS library that you will able to interact AWS services with the help of Boto3 module. So this you can learn it once you learn some basic understanding, and later on you can also create one web app with the help of Flex module, Flex library. जब आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं एक दूसरे ट्यूटोरियल बना दूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स. बट आई एम टेलिंग यू जस्ट हैव टू लर्न एंड यू जस्ट यूज ChatGPT एंड डिफरेंट AI टूल्स टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, ये सीखो. जब ये सीख लोगे उसके बाद लर्न अबाउट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम. सो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होती है? सो लेट्स से यू हैव बिल्ट एन एप्लीकेशन, यही बात करते हैं जो हमने फ्लेक्स की एप्लीकेशन बनाई है. तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, दिस इज़ अ वर्जन 1. आपने डिज़ाइन कर दी, ये सही चल रही है. आप चाहते हो कि मैं एक और न्यू फीचर डाल दूँ, तो आपने क्या करा, आपने दूसरा फीचर डाला और आपने उसको रन किया और वो चले नहीं. आप चाहते हो कि यार ये जो न्यू फीचर है ना, इसको हटाना है, मुझे अपना जो पहले मेरा कोड था ना वही चाहिए, मेरे को ये न्यू फीचर नहीं चाहिए अब. तो मैनुअली आप थोड़ी ना करोगे, आप मैनुअली थोड़ी ना बार बार कोड को हटाओगे, एक दो लाइन को हटा दोगे. बट अगर वो लाइन बड़ी सारी चीज़ें चेंजेस है, सपोज यू हैव डन चेंजेस इन मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, तो राइट वे इज़ टू यूज़ अ version control system tools that can basically control your all the version, and it has a feature, right, to basically roll back the versions. Okay, so that is we are using Git. So Git, you have to learn Git, how to basically how to just learn the basic. I have created one tutorial on YouTube also, just watch that 1 hour video, you will able to understand what is Git and how to use it. Okay, configure करो, install करो,
and learn about branching and merging, create a different branches and then how to merge them into the main branch, and then also learn about the merge conflict. This is an important concept. This might ask in interview how you will फिक्स हाउ यू विल रिजॉल्व द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. तो आपको ये सीखने की बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत जगह प्रॉब्लम आती है जब आप बेसिकली गिट यूज़ कर रहे होते हो, राइट, एंड यू डिड सम चेंजेस and when you are pushing that code into the GitHub, right, you will get some merge conflict related errors. तो आपको पता होना चाहिए कैसे फिक्स करते हैं. रीबेस एंड वर्सेस मर्ज, ये कॉन्सेप्ट पढ़ो. उसके बाद कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. आई प्रेफर गिटहब, यू कैन यूज़ गिटलैब ऑल्सो, डजेंट मैटर. सो वहाँ पे अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो. जो आपने ऊपर बेसिकली एप्लीकेशन बनाई है, फ्लेक्स की एप्लीकेशन है, उसको गिटहब पे डालो. ठीक है, उसको गिटहब पे डालोगे तो बेसिकली इट विल ऑल्सो पब्लिश ऑन पब्लिकली, राइट. आप उसको अपनी रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो दैट आई हैव क्रिएटेड एप्लीकेशन. उसके बाद सीखो कि व्हाट इज़ फोक एंड हाउ टू पुल रिक्वेस्ट. ओके, व्हाट इज़ पुल रिक्वेस्ट बेसिकली. सो एंड देन लर्न अबाउट स्टैश एंड चेरी पिक. दिस concept, if you know about that, that's fine. Till now you will learn a lot of things. Okay, so basically we have to start learning about something called the new technology, or let's say cloud providing. In last time I haven't discussed about cloud computing a lot of time, but now you should have to learn it because everyone is moving to the cloud. Okay, as a DevOps engineer you should know about how to use cloud services to create a resources and like cluster and different things, and how to design your architecture. तो आप कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हो. आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस ऑन AWS टिल नाउ. आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑन Azure and GCP, बट द रीज़न इज़ आई डोंट वांट टू गो ऑन ऑल द टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजीज आर सेम. ठीक है, अगर आप GCP पढ़ रहे हो या Azure पढ़ रहे हो या AWS पढ़ रहे हो, द कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी आर सेम. ठीक है, ओनली द डिफरेंस इज़ द नेम ऑफ द सर्विसेज. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल AWS में IAM यूज़र्स जो होते हैं वो Azure में उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी. तो बोथ आर सेम. देर आर सम सर्विसेज आर डिफरेंट एंड बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफरेंट, बट लॉजिक आर सेम. ठीक है, तो कोई भी प्रोवाइड यूज़ कर सकते हो. सो AWS के साथ जा सकते हो. बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, लाइक हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंसेस. ठीक है, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं. IAM रूल्स एंड पॉलिसी, हाउ टू असाइन रोल्स टू दैट सर्विसेज एंड हाउ टू असाइन रोल्स टू द यूजर्स ऑल्सो. ये सीखो. उसके बाद सीखो व्हाट इज़ S3 बकेट्स एंड हाउ टू क्रिएट देम. ऑल्सो सीखो कि डेटाबेस सर्विसेज कैसे होती है. और देर आर मल्टीपल सर्विसेज. आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, बट स्टार्टिंग में आपको सिंपली बेसिक से स्टार्ट करना है. एडवांस टॉपिक लेटर ऑन. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये पढ़ो कि बेसिक EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, S3 बकेट कैसे क्रिएट करना है, व्हाट इज़ RDS एंड व्हाट इज़ DynamoDB. अगर आप ज़्यादा AWS की सर्विसेज यूज़ करोगे ना, अगर आपको पता नहीं कैसे उसको डिलीट करना है, तो इट माइट चार्ज यू. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट basic understanding. Okay, then later on once you know how to create a EC2 instance, how to use that cloud computing, now you might feel that till now that I have learned a lot of things, right? How to make all the things automated. I mean, आप सोच रहे होगे यार मेरे को 10 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है यार, वाई आई हैव टू क्रिएट वन बाय वन गोइंग बैक टू द बेसिकली वाई आई हैव टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ UI. ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, वी हैव लर्न ऑल्सो अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट. वी लर्न अबाउट Python, then we have learned about here we learn about AWS. ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ आई कैन क्रिएट स्क्रिप्ट्स दैट कैन डू ऑटोमेशन. ओके, तो होता क्या है, जैसे सपोज मेरे को 10 VMs क्रिएट करनी है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है. there is two way that I can use to achieve as automation. I can use a Python also. ठीक है, I can use a Python and I can call with the help of both to 3 libraries. With that API calling, I can create that. Another tool that you can use it and which is very popular is Terraform.
तो टेराफॉर्म क्या करता है बेसिकली, इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मीन्स इट विल क्रिएट योर इंफ्रास्ट्रक्चर with the help of code. So whatever you are writing in a code as a code in the file, right, you are writing that instructions that I want to create 10 EC2 instance, ठीक है, with some databases also. I also want to create some kind of S3 bucket. You are specifying everything in a code and you are applying that file of code, and this will create योर सर्विसेज ऑन AWS, ठीक है. तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है. जब आप सीख लोगे AWS, व्हेन यू लर्न अबाउट टेराफॉर्म, you will able to understand how tools are required, why it is required, right? Another thing, you can learn about cloud formation, which is provided by AWS, but it is only, what is the difference between these two tools? Terraform is compatible and it is can be used for any cloud provider, GCP, AWS, or Azure. It is a multi-cloud provider. However, that cloud formation, it's similar like a Terraform, but it is only can be used with the AWS services, can manage AWS services. तो अगर आपको Terraform आता है तो you can easily learn about cloud formation also, ठीक है. उसके बाद लेट्स से यू हैव क्रिएटेड 10 VMs, ठीक है. अब प्रॉब्लम आती है कि यार मुझे 10 VMs में मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, 10 VMs में सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और मुझे लेट्स से मुझे सिंपली मुझे पैकेज को अपडेट करना है. तो मैनुअली तो मैं करूँगा नहीं. अभी तो 10 VMs है, अगर सोचो 100 VMs होती, 100 VMs होती, ठीक है. इंस्टेड ऑफ लाइक मैनुअली डूइंग दैट, what I will do that, I will write a playbook, Ansible playbook, and I will apply that Ansible playbook in all the VMs, okay. That will configure everything with the help of configuration tools. And there are other tools also available like Chef and Puppet, but Ansible is much used in many organization and it is in demand also, so you can learn Ansible. Then later on, just learn about the CI/CD basic understanding, what is CI/CD, and you can use any of that tool. Forget about the Argo CD, okay. Learn Argo CD later on when we talk about Kubernetes, okay. But let's talk about these two tools. One second, okay. Jenkins and GitHub Actions. So if you have some experience on GitHub already, when we talk about above here, right, we talk about Git and GitHub in version controller, then you will able to understand also GitHub Actions. It is a little bit different. So what is CI/CD? CI/CD is basically helpful when you want to do everything on automation, right? You want to create a continuous integrity and continuous delivery, right? So it is basically you will test and you will build and deploy your application with the help of automation. So Jenkins भी वही करता है, GitHub Action भी वही करता है. Jenkins में क्या दिक्कत है? Jenkins को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. आपको बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ेगा मास्टर नोड फॉर द Jenkins. फिर आपको थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली आपको करनी पड़ेगी, फिर आप यू कैन यूज़ इट, ठीक है. बट एज ए बिगिनर थोड़ा सिंटेक्स भी डिफरेंट है, ये ग्रूवी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है. और GitHub Action में YAML फाइल से यू कैन डिफाइन योर स्टेजेस एंड स्टेप्स. तो GitHub Action ईजी है एज़ कम्पेयर टू Jenkins, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. बट Jenkins भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये है कि Jenkins को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेस्ट इट. इंस्टेड ऑफ यू कैन यूज़ GitHub Actions. But I'm telling you, both is very important. Sometimes companies asking Jenkins because they have very older kind of application design. They maybe are using a Jenkins and they maybe are using a GitHub Actions, right? So it depends on the app, that maybe you can learn both. ठीक है. बेसिक समझना, ज़्यादा डीप में मत जाना. CI/CD में ना कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी कैसे करना है. अब आ गया मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं आता और नहीं आपको पढ़ना तो यू विल नॉट एबल टू सक्सीड इन DevOps. सो टिल नाउ इफ़ यू नोटिस वी हैव लर्न अबाउट, लेट मी गो हियर, वी क्रिएटेड एन एप्लीकेशन, राइट, फ्लेक्स एप्लीकेशन, एंड वी डिप्लॉयड इनटू VM. जब हमने VM में डिप्लॉय करी होगी तो हमने पहले क्या करा होगा, हमने बेसिकली पैकेजेस को, जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है उसको इंस्टॉल किया, ठीक है.
और उसके बाद हमने उस रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद हमने टेस्ट किया और चल रही है। इसमें दो ड्रॉबैक है। अगर सपोज़ मेरी VM डाउन होगी, ठीक है, डाउन होगी, तो माई एप्लीकेशन विल बी डाउन। देर इज़ नो वे आई कैन मेक दैट एप्लीकेशन एज अ रिलायबल। आई मीन डाउन टाइम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट, सपोज आई एम यूजिंग उबुंटू मशीन हियर, ठीक है, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन ऐसी मेरी एप्लीकेशन में जो मेरी एप्लीकेशन है और उबुंटू के अंदर मेरा पाइथन वर्जन जो है ना वो 2.1 है। आई एम गिविंग एग्जांपल। अब जो एप्लीकेशन डिज़ाइन थी वो 2.1 में हुई थी, ठीक है। अब मेरी ये दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरा सॉरी VM है, विच इज़ लेट्स से इट्स दिस इज़ अ विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ में मेरा पाइथन वर्जन है 3.2। एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में मैं चल जाना। तो मैंने क्या किया, इसमें तो मेरी एप्लीकेशन चल रही है उबुंटू में, बट मैं जब एप्लीकेशन को, जो मेरी फ्लेक्स की एप्लीकेशन है, जब मैं इसमें डाल रहा हूँ एंड आई एम इंस्टॉलिंग द रिक्वायरमेंट्स एवरीथिंग, और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरी एप्लीकेशन चल ही नहीं रही, ठीक है। रीज़न इज़ यहाँ पे मेरा पाइथन का वर्जन डिफरेंट है, यहाँ पे मेरी पाइथन का वर्जन डिफरेंट है, और मे बी it might be not 100% work on different architecture. मे बी उबुंटू में AMD आर्किटेक्चर है, राइट, एंड विंडोज़ में ARM यूज़ होता है, 64 ARM, राइट, ARM। तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ यू are making sure that your application is reliable and it does not have any dependency issue. There is a this was a main problem. तो मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, कंटेनर्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग मोनोलिथिक एप्लीकेशंस लाइक इंस्टॉलिंग VMs एंड मेंटेनिंग दैट, दिस इज़ अ VM, ठीक है। मार्केट में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, दिस इज़ अ माइक्रो सर्विसेज। So what will happen, instead of I will install on VM, I will install on my application on these 3 containers. This is a microservices. अगर मेरा कोई एक भी containers, let's say this is my this container got dies, right, मेरा ये तो चल रहा है ना, तो मेरी application stay away and ये automatically recreate भी हो सकता है, ठीक है। वी कैन सेटअप लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरी बेसिकली आई हैव सेटअप काइंड ऑफ रिलायबल सिस्टम दैट मेरी एप्लीकेशन कभी भी डाउन नहीं होगी। और ये जो तीनों जो बेसिकली कंटेनर, ये भी VMs में डिप्लॉय होते हैं, बट देर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, लाइक देर विल बी अ मल्टीपल नोड्स आर नथिंग, इज जस्ट अ VMs, ओके। तो वो मेरा बेसिकली रिलायबल सिस्टम क्रिएट होएगा। सेकेंडली, हाउ कंटेनर इज रिजॉल्विंग द डिपेंडेंसी। सो कंटेनर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंटेनर, यू आर डिफाइनिंग द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स इन द डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो वो आप डॉकर इमेजेस में सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल डिफ़ाइन कर रहे हो। जब मुझे बेसिकली एप्लीकेशन को रन करना है, तो मैं वो इमेज को रन करूँ, इंस्टॉल बेसिकली पुल करूँगा, और मैं उस इमेज से कंटेनर क्रिएट करूँगा एज अ आइसोलेटेड कंटेनर। तो जब जो भी रिक्वायरमेंट्स ये कंटेनर में, लेट्स से इस कंटेनर में मेरी पाइथन का वर्जन 3.2 है, सॉरी 2.1 है, ठीक है। मेरी बेस VM, दिस इज़ माई होस्ट मशीन वेयर आई एम रनिंग अ कंटेनर, इसके अंदर मेरा होस्ट VM में मेरा 3.2 है, ठीक है, 3.2। तो ये चलेगा क्या? हाँ, ये चलेगा, क्योंकि आई एम इंस्टॉलिंग इनसाइड द कंटेनर। तो इनसाइड द कंटेनर आई हैव डिफाइंड दैट डॉकर फाइल इमेज, द डिपेंडेंसी विद दैट सेम वर्जन, ठीक है। तो वो उसको मैटर, कंटेनर को मैटर नहीं करता कि होस्ट मशीन में क्या रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर स्पेसिफिकली इंस्टॉल करेगा जो हमने इमेज में लिखा है। तो बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं सारी चीज़ें डॉकर की अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट सिमिलर वे दैट वाई वी यूज़ डॉकर, लर्न अबाउट बेसिक, ठीक है। मैं तो मुझे बस ये समझाना था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। लोग डायरेक्टली क्यूबरनेटिस सीखने लग जाते हैं, अगर डॉकर नहीं आता तो क्यूबरनेटिस ना सीखना, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा। तो लर्न अबाउट कंटेनराइजेशन, learn about how containers are different than virtual machines, then learn about what is Docker images and how it is different than containers,
ठीक है। डॉकर इंजन के बारे में समझो, हाउ डॉकर डी इज़ वर्किंग इन अ बैकग्राउंड व्हेन यू आर रनिंग अ कमांड्स, हाउ डॉकर इज़ इंटरेक्टिंग विद द सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आप सीखो डॉकर की नेटवर्किंग, एंड दिस इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप 3 टायर्स एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो यू हैव टू क्रिएट काइंड ऑफ नेटवर्किंग दैट कैन ऑल योर कंटेनर्स कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो आपको नेटवर्किंग के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जैसे अब ऊपर हमने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर आपको नहीं पता हो देन यू विल नॉट एबल टू लर्न अबाउट डॉकर नेटवर्किंग ऑल्सो। तभी कहते हैं कि आपको बेस आपका पक्का होना चाहिए, जो लिनक्स और नेटवर्किंग है, ठीक है। उसके बाद बाइंड माउंट एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ो। तो कंटेनर्स में एक प्रॉब्लम होती है बेसिकली, अगर आपका कंटेनर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो आपके जो डेटा होएगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, सो डॉकर ने एक चीज़ बेसिकली डॉकर क्या कहता है कि आप persistent वॉल्यूम क्रिएट कर दो एंड यू कैन अटैच दैट वॉल्यूम टू द कंटेनर्स। तो अगर आपका कंटेनर्स डिस्ट्रॉय हो गया देन यू कैन रिक्रिएट द कंटेनर्स एंड यू कैन री अटैच दैट वॉल्यूम। तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, कंटेनर्स लॉस हो जाएगा अगर कंटेनर डिस्ट्रॉय होगा तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, यू कैन रीड इट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन यू कैन लर्न अबाउट डॉकर कंपोज। So Docker Compose is also important. So if you have 3 tiers application again and there is a dependency, suppose अगर मेरी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन का बैकएंड जो सर्वर है वो डिपेंड है डेटाबेसेस पे। अगर डेटाबेस अप नहीं होएगा तो मेरी एप्लीकेशन का बैकएंड सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो अगर सपोज़ आप ये कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, सपोज़ मेरा डेटाबेस अप नहीं है और मैं बार बार कंटेनर को ट्राई कर रहा हूँ क्रिएट करने में, बैकएंड के कंटेनर को क्रिएट करने में, तो वो चलेगा ही नहीं और मेरे को समझ नहीं आएगा क्यों नहीं चल रहा। तो डॉकर कंपोज क्या करता है, इन डॉकर कंपोज यू कैन राइट काइंड ऑफ डिक्लेरेटिव वे, यू कैन राइट अ YAML फाइल एंड देयर यू कैन डिफाइन योर डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग सर्विसेज, ठीक है। तो मैं वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मेरा डेटाबेस जो मेरा बैकएंड जो है वो डिपेंड है डेटाबेस पे। तो वो क्या करेगा, डॉकर कंपोज पहले डेटाबेस सर्वर को अप करेगा, उसके बाद मेरा जो बैकएंड सर्वर है वो अप हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव टू लर्न इट, ओके। देन लर्न अबाउट मल्टी स्टेज बिल्ड। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर you should have to know how to optimize your images, docker images, and how to make it secure. तो docker multi stage is very important, ठीक है, ये सीखना। docker platform build is different than docker stage build. platform is architecture, ठीक है। similar way docker में भी issues आते हैं। सपोज़ मैं अभी विंडोज़ में हूँ तो विंडोज़ में 64 ARM होता है, ठीक है। or let's say you are installing that container that is Ubuntu or whatever you are using it has a AMD processor CPU kind of, ठीक है। तो दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है डिफरेंट है। जब मैं इमेज क्रिएट करता हूँ डॉकर की तो आई हैव टू क्रिएट काइंड ऑफ मल्टी आर्किटेक्चर दैट कैन सपोर्ट ऑन बोथ एनवायरनमेंट। अगर आपको नहीं आता होगा और यू मे डील विद दैट काइंड ऑफ इशू कि आपकी इमेज नहीं काम करेगी, ठीक है। तो आपको यू हैव टू लर्न अबाउट दिस मल्टी प्लेटफॉर्म बिल्ड, ठीक है। ऑल्सो लर्न अबाउट डिस्ट्रोलेस इमेजेस। डिस्ट्रोलेस व्हेन यू लर्न अबाउट मल्टी स्टेज, ठीक है, तब यू विल एबल टू लर्न अबाउट डिस्ट्रोलेस इमेजेस, ठीक है, हाउ टू यूज डिस्ट्रोलेस इमेज टू मेक इट सिक्योर इमेजेस। जब यहाँ तक सीख लोगे यू हैव लर्न अबाउट कंटेनराइजेशन, ठीक है। नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट ऑर्केस्ट्रेटर। व्हाट इज़ ऑर्केस्ट्रेटर? Let's say containers is getting destroyed, it is not able to maintain it, ठीक है। how to maintain containers, ठीक है। orchestrator is nothing, is how to auto heals, auto scales your application, I mean your containers, and then it introduce orchestrator। तो आप स्टार्ट कर सकते हो Kubernetes पे डायरेक्टली मत जाना क्योंकि Kubernetes को इंस्टॉल कर नहीं पाओगे आप लोकली, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन नोड आर्किटेक्चर पे जाओ विच इज़ मिनीक्यूब। यू कैन सिंपली लर्न हाउ टू इंस्टॉल मिनीक्यूब इन योर पर्सनल लैपटॉप एंड देन यू कैन लर्न अबाउट Kubernetes, ठीक है। सिमिलर कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। Kubernetes जब आर्किटेक्चर होता है क्लस्टर में तो इट हैज़ अ मल्टीपल क्लस्टर, ठीक है। मास्टर नोड है, वर्कर नोड है, डिफरेंट थिंग है। बट मिनीक्यूब में सिंगल नोड आर्किटेक्चर होता है, बट यू कैन क्रिएट एनी थिंग, ओके, ऑन मिनीक्यूब ऑल्सो। So learn about that.
Then you can learn about Helm is also important, like it's a package management of Kubernetes. ठीक है, आप you can release a new version with the help of Helm, and you can maintain with the Helm also. Learn about that. And one thing also here, okay, so once you learn about this thing, learn about, just explore the AWS services like ECS and EKS. So it is nothing, it is a managed clusters providing by the AWS. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता है क्लस्टर तो AWS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. लर्न अबाउट द सर्विसलेस कॉन्सेप्ट. ठीक है, सर्वरलेस कॉन्सेप्ट इज़ इंट्रोड्यूसिंग रिसेंटली, आई मीन नॉट रिसेंटली बट इट इज़ गेटिंग पॉपुलर. सो सर्वलेस सीख सकते हो, उसमें AWS लैम्डा फंक्शन सीख सकते हो. एंड वंस यू लर्न एवरीथिंग, देन इट इज़ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन. ठीक है, तो ट्राई करो, अगर आप खुद क्रिएट कर सकते हो 3-tier एप्लीकेशन विच इज़ वेल एंड गुड. बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट इट, यू कैन क्लोन एनी अनदर प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब. ठीक है, उसको कंटेनराइज करो, कंटेनराइज करके उसको डिप्लॉय करो विद द हेल्प ऑफ CI/CD टूल्स एंड हेल्प ऑफ बेसिकली योर नॉलेज. ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. तो आप उसमें जेनकिंस यूज़ कर सकते हो, गिटहब एक्शंस यूज़ कर सकते हो. डिप्लॉयमेंट के लिए यू कैन ट्राई टू यूज़ आर्गो CD. ठीक है, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो. जब यू कैन क्रिएट इट राइट, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस थिंग ऑन योर रिज्यूमे. ठीक है, तो इतना कर लोगे बहुत है. दिस इज़ फाइन, आई मीन दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते एज अ डेवऑप्स इंजीनियर. बट हाँ, once you learn this thing, then let's say you created an application, right? Then you will also learn about how to monitor your application with different tools which Kubernetes itself providing. Let's say Prometheus and Grafana, how to configure Prometheus alerts, how to create Grafana graphs. ठीक है, ये चीज़ें सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डीबगिंग द एप्लीकेशन ऑल्सो. Also learn about how to scale your scale the ports. ठीक है, auto scale the application with so this is important. Learn about this thing, and then later on you can learn about security concept. Many of people don't care about that, but please take care about that. As a DevOps engineer, you should know about how to deal security related issues in the application side, and you need to have to deal with that. Okay, so simply there are like learn about TLS and SSL certificates, and learn about the vault. Okay, secret vaults. Learn about the incident response plans. If something will like have some kind of 0-day vulnerability, how you will able to patch that as a DevOps engineer. Learn about that. Then learn about elastic search stacks. ठीक है, learn about OWASP, ZAP. This is all are things that you just have to read the things and try to implement, nothing else. Later on, which is I feel that many people don't care about that, which is the soft skills. Many DevOps engineer, not only DevOps engineer, in IT career, IT people don't focus on soft skills, and that is a main reason that they have a lot of skills. बहुत सब कुछ भी आता होगा ना, अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स आपको बोलना नहीं आता होगा, देन यू विल नॉट एबल टू गेट द जॉब्स. तो आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखने की बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन ठीक करो. ठीक है, साथ में अपने जो आपने नॉलेज सीखी है उसको ट्राई करो, लिंक्डइन पे डालो और जगह पे डालो, ताकि यू विल एबल टू हाईलाइट एंड यू विल एबल टू गेट सम काइंड ऑफ जॉब्स ऑल्सो. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होनी चाहिए. ठीक है, हाउ टू debug the application, how to find out the logs, ये चीज़ें होनी चाहिए. एंड ट्राई टू collaborate with developers. अगर आपको नहीं पता है हाउ Node.js एप्लीकेशन इज़ वर्किंग, React एप्लीकेशन इज़ वर्किंग, डेवलपर के साथ बैठो, उनसे समझो कि एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन होती है, एंड हाउ दैट एप्लीकेशन क्रिएट द डिपेंडेंसी एंड हाउ टू डिप्लॉय दैट एप्लीकेशन. चीज़ें समझोगे तभी आपको समझ आएगी, तभी आप कंटेनराइज कर पाओगे एप्लीकेशन को. ठीक है, लेटर ऑन मेक श्योर बी लर्न विद द ट्रेंड्स. ठीक है, ट्रेंड्स के साथ सीखो और हमेशा अप टू डेट रहो ट्रेंड के साथ. कुछ भी आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्राई टू यूज़ इट.
does not require to always be perfect in that, but try to use it, okay? And always keep learning, not say that I have everything that I can learn it, and I know everything, ठीक है? हमेशा सीखते रहो। और एक चीज़ हमेशा याद रखें ना, जब आप चीज़ें सीख रहे होते हो ना, आप जैसे बड़े सारे टूल्स है, बड़ी सारी टेक्नोलॉजी है, इवन दिस इज़ अ वेरी बिग रोड मैप, पीपल आर सेइंग दैट this road might take like 6 months 7 months. There's no issue, right? You can learn it slowly. I mean, it's depend on you. But the thing is, when you are learning things, if you are thinking that I have to stay away from jobs and just learn for 6 months, right, and then I can get a jobs, this is not a right way. You can get some different kind of jobs, and then you can apply, and later on you can get a DevOps job. That is the right way, ठीक है? इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट rather than sitting down and just learning. And another thing that I just want to share it, when you are learning something, let's say you are learning Linux and networking, बड़े सारे मिस्टेक करते हैं, इवन आई ऑल्सो डिड मिस्टेक। मैं स्टक हो जाता था उस टाइम पे कि हाँ भाई मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे पूरा परफेक्ट होना है लिनक्स में, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू एनी वन, ठीक है? कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने, टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो आप अगर ये टॉपिक्स भी पढ़ लोगे ना, इतने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने, आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ो। बट ये ना हो कि आप एक ही जगह स्टक हो रहे हो, यार मेरे को मुझे ये कंप्लीट करना है, मैं लिनक्स में 6 महीने लगा रहा हूँ, 10 महीने लगा रहा हूँ। ऐसे ना करो, नहीं तो आप बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपको आने वाले टाइम पे। तो रोड मैप इसलिए ही दिया जाता है। आई मीन हम भी बार बार रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं, पिछले साल भी किया था हमने, और बड़े सारे यूट्यूबर्स भी क्रिएट करते हैं। उनका यही पर्सपेक्टिव रहता है कि आप एक जगह स्टक ना हो जाओ। कोई चीज़ पढ़ रहे हो, डॉकर पढ़ रहे हो, डॉकर में पागल ना हो जाओ कि पढ़ते रहो, मैं भाई आज ही कंप्लीट करना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। ऐसे नहीं होता। आप लर्निंग जो होती है ना, वो चलती रहती है लाइफ में। आप लर्निंग के साथ आगे बढ़ो, जॉब अप्लाई करो, जॉब करो, साथ साथ सीखते रहो, ऐसे चलती है लाइफ। इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपने सीख लिया, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, अगर आपको अभी भी डाउट है, लाइक कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा और आपको सम करियर गाइडेंस चाहिए, आप सीरियसली परेशान हो, यू कैन ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, दैट इज़ आई एम रियली सॉरी, बिकॉज समटाइम इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट रिस्पॉन्स ऑन लिंक्डइन और सम अनदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। अगर आप चाहते हो 1-on-1 कनेक्ट करने के लिए, आप टॉपमेट पे जाओ और you can search on me, like I can share that link also in the description. You can set up a call with me anytime and I can connect with you, ठीक है? क्योंकि मुझे भी नहीं पता आपकी करियर क्या है, ठीक है? मे बी आई डिफरेंट फ्रॉम माई करियर एंड मे बी रोड मैप सही नहीं है आपके लिए। आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और लेटर ऑन वी कैन डिस्कस मोर, ठीक है? I think this video is very helpful, and if you are really like this video, please subscribe this channel and hope नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे मोटिवेटेड विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।